BJP leader Amit Malviya is now joining me on the phone line. Mr. Malviya, the police at the moment standing outside Rahul Gandhi's house. He is not stepping out. The police very clearly asking him to give them the facts because of the statement he made in Srinagar. I think it's only logical that we all come together to help the girls Rahul Gandhi spoke about. And if there were instances of sexual exploitation and the girls did not get adequate support from the administration, and Rahul Gandhi spoke about it, and he spoke about them in a manner that it is only befitting that Delhi police gets the detail and does what is appropriate. After all, ensuring the dignity of women should be everyone's priority. Unless Rahul Gandhi made up that story and propped up those women characters who probably do not exist, if that is not the case, and if Rahul Gandhi was actually very sincere about what he said, if he was speaking the truth, he should have no problem cooperating with Delhi police, because after all, the objective of Delhi police reaching out to Rahul Gandhi is to ensure that we get details of those girls that he spoke about and ensure that justice is done. Rahul Gandhi must stand up and get counted. He must give details of those women that he spoke about and their travails. It's time that India shows that we care for our girls and our women, and Rahul Gandhi can't be left behind in this. I repeat again, if he was sincere, he should speak up to Delhi police and share details. Right, Mr. Malviya, and time and again it seems like Rahul Gandhi is being asked to give all the facts of the statements that he's been making of late, and we are seeing the Delhi police personnel right at the moment still waiting for Rahul Gandhi to respond, for him to step out or to at least open the doors of his house and ask the police personnel to enter his house. Well, Rahul Gandhi is a senior leader of the Congress party. He's a former president. So if he says something in the public domain which puts India in bad light, then it is everybody's responsibility to make sure that his words are taken seriously. And that's what Delhi police is doing. It's about ensuring that whatever information he has is followed up on. And I don't think Rahul Gandhi or anybody should have any problem. I mean, if he is in know of some information, which means that some people, some women, some girls could find help from administration, he should come forward and speak about it. Thank you, Mr. Malviya, for joining me on this story. Amit Malviya very clearly saying that Rahul Gandhi should come out and give details of the statement that he made in Srinagar. I'll cut across to Arvind Oja, my colleague, who's standing right outside Rahul Gandhi's house at the moment. Arvind, अभी भी हम देख सकते हैं फोन पे बात करने की कोशिश हो रही है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि इंतजार किया जा रहा है. राहुल गांधी के जो ऑफिसर्स जो राहुल गांधी के हैं उन सबको बता दिया गया है कि बाहर इंतजार किया जा रहा है. इस समय क्या चल रहा है दोनों गेट पे? अरविंद राजा, देखिए, हम सीधे कोशिश करेंगे कि आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें. अगर आप थोड़ा सा और आगे आए और ये देखें कि किस तरीके से गेट के बाहर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है. इंडिया टुडे पहला चैनल था. जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो हमने वो तस्वीरें दिखाई थी पहले एंट्री गेट की, जहां पर एसीपी रैंक के 2 ऑफिसर वो राहुल गांधी के घर के ठीक मेन एंट्री गेट पर के अंदर जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी से कम्युनिकेशन हो पाए. हालांकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया. जो उनके सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने अंदर कम्युनिकेट किया कि बाहर दिल्ली पुलिस की टीम आई है. उसके बाद स्पेशल सीपी और डीसीपी वो अटेम्प्ट करते हैं, हालांकि कामयाबी नहीं मिलती है. उसके बाद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो सागरप्रीत हुड्डा है वो उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि राहुल गांधी को जानकारी मिल चुकी है कि दिल्ली पुलिस की टीम बाहर है और अब ये देखना होगा कि कब वो बाहर से कम्युनिकेशन अंदर से वो कम्युनिकेट करते हैं बाहर दिल्ली पुलिस को. उसके बाद स्पेशल कमिश्नर, डीसीपी और तमाम जो ऑफिसर हैं, ऑफिशियल है, वो इस गेट पर मौजूद है. क्या राहुल गांधी से कम्युनिकेशन हो पाया दिल्ली पुलिस का? क्या जो नोटिस सर्व किया गया था राहुल गांधी को, क्या उसका उन्होंने रिप्लाई किया? क्या दिल्ली पुलिस से अभी मुलाकात हुई? ये कुछ देर बाद जो ऑफिशियल जानकारी है वो मिलेगी. लेकिन स्पेशल सीपी ने बकायदा इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली से होकर श्रीनगर गई थी और उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो ये दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह की शिकायत की, रो रो कर ये बताया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, उनका बलात्कार हुआ. ये जानने की कोशिश है
दिल्ली पुलिस की, ताकि जो कहीं ना कहीं वो अगर जो महिलाएं जो विक्टिम है उनको सेव किया जा सके, जो अक्यूज है उन पर लीगल एक्शन लिया जा सके। हमने ये भी पूछा कि अगर ये बयान श्रीनगर में दिया गया था तो दिल्ली में एक्शन लेने का क्या मतलब बनता है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और ये भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली से होकर गुजरी थी और खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर उस यात्रा में मौजूद थे। तो ऐसे में पूरी यात्रा का जिक्र किया गया था, तस्वीरें आप जरूर यहां पर दिखाएं, पूरी यात्रा का जिक्र किया गया था और उसमें दिल्ली भी शामिल था। इस वजह से दिल्ली पुलिस डिटेल्स लेना चाहती है। पहले 15 मार्च को नोटिस सर्व करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद 16 मार्च को फिजिकली दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आई थी। राहुल गांधी ने नोटिस खुद रिसीव किया था, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, जिसके बाद आज खुद स्पेशल कमिश्नर, डीसीपी और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल है वो यहां पर आए और राहुल गांधी से डिटेल्स लेने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय कॉलीग अरविंद हु स्टैंडिंग राइट आउटसाइड राहुल गांधी's हाउस। नाउ let's listen in to Sagar Preet Hooda, the special CP Law and Order Delhi, what he had to say as he stepped outside Rahul Gandhi's house. 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ।